کا مطلب ہے بیٹے نے انسان کی نجات کا کام جو ہے مکمل کر دیا، اور اس کا ظاہری نشان کیا دیا گیا؟ کام مکمل ہوا تو اس کا ظاہری نشان کیا تھا؟ مقدس کا پردہ، مقدس کا پردہ اوپر سے ساتھ رہی، اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ اس کو سمجھیے گا، یہ نشان تھا۔ کس بات کا نشان تھا؟ بیٹے کے صلیب کے کام کو تکمیل دینے کا نشان تھا۔ بیٹے نے کفارہ دے دیا ہے، بیٹے نے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، بیٹے نے باپ کے غضب کو اپنے لہو سے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ آمین۔ بیٹے نے گناہوں کی دیوار کو کھلا دیا ہے۔ اس کا ظاہری نشان ہمیں چاہیے انسانوں کو، تو ظاہری نشان کیا تھا؟ کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اس بات کا نشان تھا کہ خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی کی دیوار ہے وہ یسوع مسیح کے صلیب کے کام سے پوری ہو گئی، اور وہ دیوار گر گئی ہے، اور راہ جو ہے خدا تک جانے کی انسان کی وہ ہموار ہو چکی ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948993 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9231987994,893. تو آئیں کچھ باتیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے آج کے دن کے تعلق سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ متی کی انجیل کھولیے گا، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور استعمال کریں گا۔ پہلی بات جو ہمیں شروع میں سمجھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کی مصلوبیت اور اس کا جی اٹھنا، مسیح کی مصلوبیت اور اس کا جی اٹھنا، یہ 2 باتیں نہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ یہ 2 باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ اب وہ کیسے ہے ہم آج اس پر غور کریں گے۔ 27 چیپٹر اور 50 آیت سے خدا کے کلام کو سنیے۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی اور قبریں کھل گئی، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد یہ ہماری مرضی آئی ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ آمین۔
مسیح یسوع کو زندہ ہوئے 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے اور وہ حل ہے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے مسیح کا جی اٹھنا جو ہے آپ جو مناتے آ رہے ہیں وہ صرف مسیح ہی کا جی اٹھنا ہو، لیکن خود کو اس میں آپ نے کبھی شامل نہ کیا۔ تو آج کے دن میں جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، آج میں خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کو اور خود کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آج اس پہ غور کریں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ مسیح کی مصلوبیت اور اس کا جی اٹھنا جو ہے یہ دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ اور ایک کیسے ہے؟ سنیے اور سنیے۔ ایک اس طرح سے ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا جو ہے اس کی صلیبی کام کی جو ہے فتح کا نشان ہے۔ آمین۔ اس کی مصلوبیت کے کام جو ہے جو گڈ فرائیڈے کے دن اس نے سر انجام دیا، اس کی فتح کا نشان ہے یہ۔ آمین۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کولوسیوں کے خط کے 2 چیپٹر کی 15 ورسوں دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ اس نے حکومتوں اور ہتھیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ آمین۔ اب اس کو ذرا آج شاید کو سنیے اور سب سیکھیے۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتارا، اور اپنے اوپر سے کیسے اس نے انہیں اتارا؟ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو بھی وہ موت کے اختیار میں رہتا ہے۔ عالم ارواح جہاں انسان کی روح جاتی ہے مرنے کے بعد، وہاں بھی موت کا اختیار جو ہے اس پر بنا رہتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے صلیب کے کام کو سر انجام دیا اور مر گیا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارا کام جی اٹھنے تک اسی کے ساتھ جڑا ہوا۔ اور جب وہ زندہ ہوا تو کیسے ہوا؟ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتارا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب سنیے غور سے، 2 طرح کا اختیار تھا، 2 طرح کا اختیار تھا جو یسوع کے اوپر تھا۔ ایک موت کا اختیار، گناہ کا اختیار یا تاریکی کی قوتوں کا اختیار، اور دوسرا فزیکلی اختیار۔ اس وقت کے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کی قبر پر مہر کر دی تھی اور باہر نگران بٹھا دیے تھے، پہرا لگا دیا تھا۔ غور سے سمجھیے گا بات۔ جب خدا کا بیٹا زندہ ہوا تو اس نے موت کے اختیار کو بھی اتار دیا اور دنیا کے حکمرانوں کے بادشاہوں کے اختیار کو بھی اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ زوردار خداوند کریے۔ یہ یسوع کا جی اٹھنا تھا، اور کیا کہا؟ آگے لکھا ہے صلیب کے سبب سے۔ کس کے سبب سے؟ صلیب کے سبب سے۔ یعنی میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جی اٹھنا اور مصلوبیت ایک ہی بات ہے۔ وہ جب زندہ ہوا تو فتح کس کی ہوئی؟ صلیب کی ہوئی۔ ہاللیلویا۔ یسوع کا جی اٹھنا جو ہے
मुर्दों में से जी उठना जो है सलीब के काम की फतह है, ऐलान है कि वो ये जंग जीत चुका है। उसने सलीब के सबब से फतह का शादियाना बचाया। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा ये अलग नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ये एक ही बात है। आमीन। इसलिए याद रखिएगा कि यीशु मसीह का जी उठना, मुर्दों में से जी उठना एक बहुत बड़ा काम है और ये उसकी मसलूबियत का असर है। क्यों? यीशु ने क्या कहा? सुनो गौर से, यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा हुआ है, जब तक दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, दाना जमीन में गिरकर तो बहुत सा फल नहीं लाता। आमीन। यीशु की मौत ही उसके जी उठने का सबब है। आमीन। जोरदार खुदावंद के लिए याद रखिएगा, उसकी मौत ही उसके जी उठने का सबब है। और सिर्फ उसके नहीं, दाना जब मरता है तो बहुत सा, क्या लिखा है? कितना फल? बहुत सा फल। तो दाना जब मरता है तो कितना फल? बहुत सा फल। तो पहला फल कौन है? यीशु है। देखिए, आज का दिन सिर्फ यीशु के जी उठने का दिन नहीं है, यीशु मसीह में हम सब के जी उठने का दिन है। हालेलुया। हम सब के जी उठने का दिन है। लेकिन हम सब के जी उठने से पहले हमारे भाई जी उठने का हिस्सा बने हैं और बाइबल में ये सच्चाई मौजूद है। और किसी का वाला जहां से मैंने आपको तिलावत पढ़कर सुनाई, आए आप उसमें आ जाए ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। तो गौर से सुनिए बेटियों और बहनों, आज के दिन का पैगाम, जब यीशु मसीह ने मसलूबियत का काम सर अंजाम दिया और जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तो तमाम होने का मतलब है कि जिस काम को बेटा करने के लिए आया था वो पूरा हो चुका है। आमीन। वो पूरा हो चुका है। और किस काम को बेटा करने के लिए आया था इस दुनिया में? वो मुझे और आपको गुनाहों से निजात देने के लिए और दोबारा से बाप के साथ मिलाने के लिए इस दुनिया में आया था। आमीन। इसका मतलब फिर क्या है? गौर से सुनिएगा। तमाम हुआ का मतलब है बेटे ने इंसान की निजात का काम जो है मुकम्मल कर दिया और उसका ज़ाहिरी निशान क्या दिया गया? काम मुकम्मल हुआ तो उसका ज़ाहिरी निशान क्या था? मक़दस का पर्दा, मक़दस का पर्दा ऊपर से, साथ रहिए, ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़ों में हो गया। इसको समझिएगा, ये निशान था। किस बात का निशान था? बेटे के सलीब के काम को तकमील देने का निशान था। बेटे ने कफारा दे दिया है, बेटे ने गुनाहों का कफारा दे दिया है, बेटे ने पाप के गज़ब को अपने लहू से ठंडा कर दिया है। आमीन। बेटे ने गुनाहों की दीवार को गिरा दिया है। इसका ज़ाहिरी निशान हमें चाहिए इंसानों को। तो ज़ाहिरी निशान क्या था? कि मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। ये इस बात का निशान था कि खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई की दीवार है वो यीशु मसीह के सलीब के काम से पूरी हो गई और वो दीवार गिर गई है और राह जो है खुदा तक जाने की इंसान की वो हमवार हो चुकी है। हालेलुया। अब हमें सुनिए, खुदा ने पुराने अहदनामा में बाइबल पढ़ने वाले समझते हैं, खुदा ने कहा कि पाक मकान और पाक तरीन मकान, तो वहां पर सिर्फ सरदार काहे जा सकता था, पाक मकाम में सिर्फ लोग जा सकते थे। लेकिन सरदार काहे जो है वो आगे जा सकता था जहां अहद का संदूक था। लेकिन सुनिए गौर से, कोई और खुदा तक नहीं जा सकता था। ये ज़ाहिरी निशान था कि खुदा की हजूरी भी है, इंसानों के दरमियान है, लेकिन इंसान खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता, खुदा से मिलाप नहीं कर सकता है। खुदा इंसानों के दरमियान मौजूद भी है, फिर भी फासला है और खुदा और इंसान एक दूसरे से क्या है? जुदा है। और वो पर्दा उस जुदाई की क्या था? अलामत था।
तो जब यीशु ने क्या कहा, तमाम हुआ, तो याद रखिए हमें शक नहीं करना है, बेटे की कुर्बानी ने मेरी नजात का काम मुकम्मल कर दिया है। इसका निशान क्या है? पर्दा दो टुकड़े हो चुका है, पाप तक जो जाने की राह है हमार हो चुकी है, मिलाप हो चुका है। आओ, अब किसी को भी खुदा की हजूरी से दूर रहना नहीं पड़ेगा। आओ यीशु के नाम में, आओ उसके लहू के वसीले इस नई राह से पाप तक आ जाओ और बाप की हजूरी में आपको खड़े होने की लहू के सबब से तबेरी हासिल है। आमीन। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जमीन क्या हुई? लरस गई। जरा गौर से सुनिएगा, जमीन क्या हुई? लरस गई। और जब लरस गई तो फिर क्या हुआ? चट्टानें तिड़क गई। और साथ क्या हुआ? कब्रें खुल गई। इसका मतलब समझते हो? आपको एक ही कब्र याद है और उसी के सबब से ही, लेकिन इसके साथ जो जुड़ी हुई बात है वो क्या है? यीशु की कब्र के खुलने के सबब से और कब्रें भी खुल गई। और कब्रें भी खुल गई। यीशु के जिंदा होने से जिंदगी लौट आई है, जिंदगी लौट आई है, तारीकी खत्म हुई है, उम्मीद दोबारा मिल गई है। इसका जाहिर निशान क्या है? और कब्रें भी खुल गई। आमीन। और ये किनकी खुली थी? हाँ, कौन सा गल समझ चाहिए? किनकी खुली थी कब्रें? बच्चों की। और भी तो कब्रें होगी वहाँ। कौन सी निशानियां लगी होगी कब्रिस्तान में? कौन सी निशानियां होती हैं? ऐ जी ईमानदार की कब्र है, ऐसे नहीं है ना, सब कब्रें एक जैसी होती है। लेकिन खुदा को पता है कि ईमानदार मुकद्दसीन कौन है। बाप अपनी भेड़ों को जानता है और इसलिए कोई और कब्र नहीं खुली है। कौन सी कब्रें खुली है? उन लोगों की कब्रें खुली है जो ईमानदार थे, जो खुदा पर ईमान रखते थे और जो उसके बेटे यीशु पर और उसके सलीब के काम पर ईमान रखते थे। जब वो काम पूरा हुआ, तमाम हुआ, तो कब्रें खुल गई। इसका मतलब पता है क्या है? कि जिस एहतियार में वो थे वो एहतियार खत्म हो चुका। हालेलुया। जिस एहतियार में इंसान था वो एहतियार खत्म हो चुका है। कब्रें खुल गई हैं। कब्रों के खुल जाने से मुराद है एहतियार का खत्म हो जाना। मौत का एहतियार जो है खत्म हो चुका है। और मुकद्दसीन जी उठे, बहुत से, तादाद का नहीं पता, लेकिन बहुत से जी उठे। और फिर क्या लिखा है? यीशु के जी उठने के बाद, जब यीशु जी उठा, कब जी उठा? आज के दिन। कब जी उठा? यानी इतवार के दिन। कौन जी उठा? सुबह सुबह वो औरतें गई थी कब्र पर और क्या देखती है? पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र खाली है। इसका मतलब ये है कि इस दिन की सुबह के साथ एक नई सुबह जो यीशु मसीह के जी उठने में है उसका आगाज हुआ। एक नया दिन, एक नई जिंदगी। और याद रखिए ये ऐसी जिंदगी है जिसका आज के दिन आगाज हुआ जिसमें मौत नहीं है। आदम से जो आपको जिंदगी मिली उसमें मौत है, लेकिन यीशु से जो आपको जिंदगी मिली उसमें मौत है। आमीन। इसलिए सुनिएगा, जब यीशु कब्र से बाहर आया तो बाइबल में ये लिखा है कि वो मुकद्दसीन यीशु के जी उठने के बाद कब्रों से बाहर निकले। हालेलुया। इसका मतलब फिर क्या है? लिखा है मुकद्दसीन। आप क्या है? मुकद्दसीन। आप क्या है जी? आप मुकद्दसीन हैं। आपके भाई यीशु के जी उठने के साथ जी उठे हैं। और जब वो जी उठे हैं, कब्रें उनकी खुल गई हैं और वो कब्रों से बाहर आ गए हैं। तो आप भरोसा कीजिए, आप भी कब्र में नहीं रहेंगे। आपकी कब्रें भी खुलेंगी, आपकी कब्रों से बाहर आएंगे, आप भी जलाली बदनों में होंगे, आप भी इस फतह में शामिल हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आज का दिन सिर्फ यीशु के जी उठने का दिन नहीं है, आज का दिन आपके भी जी उठने का दिन है। आमीन। आपकी खुशी दुगनी हो जानी चाहिए। और सुनो गौर से, जब उसने
हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतारा है, तो याद रखिएगा उसने हमसे भी उनको उतार दिया है। मेरे साथ एक जल्दी से हवाला दीजिएगा, इफ्सियों जल्दी से स्पीड बढ़ाकर, इफ्सियों का खत इसको लीजिएगा। ये आपकी भी मेरी बेटियों बहनों आजादी का दिन है। बस थोड़ी देर और फिर इसके बाद आपने जाके सुइयां, शरबत, बोतलें, गोश्त, ये सारा कुछ करना है। लेकिन थोड़ी देर और आप को सीखिए ताकि खान से और मजा आए। आमीन। जब यीशु जिंदगी में भरपूर होगा तो खाने का मजा भी आएगा। आमीन। तो आइए मेरे साथ इस हवाले को भी लीजिए, 4 चैप्टर, इसकी 8 वर्ष। तो क्या लिखा है? हाँ, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलने वाला पर चढ़ा तो कैदियों को, ये कौन से कैदी थे? वो किसी कैद में थे। इसका मतलब क्या है? यीशु के जी उठने से पहले मुकद्दस जो ईमान रखते थे उनकी रूहें जब इस दुनिया से जाती थी तो वो कैद के अंदर थी, किसी का इख्तियार था उन पर। लेकिन यीशु ने क्या किया है? ये बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन मेरी बेटियों बहनों, इसकी अहमियत को समझिए। आपकी सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है आपके लिए? जिंदगी है। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, जिंदगी है तो खाना पीना है, जिंदगी है तो बाकी सब कुछ है। अगर जिंदगी ना रहे तो सब कुछ हो भी तो उसके होने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब क्या है? जिंदगी सबसे अहम चीज है। और आज क्या है? आज मौत नहीं है, आज जिंदगी है। हालेलुया। आज मौत नहीं है, मौत आज हारी है, जिंदगी आज जीती है। आमीन। इसलिए आज का दिन जो है बहुत खुशी का दिन है। देखिए ये गलत नहीं है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि हम हमारे बच्चे या हमारी नस्ल में थोड़ी सी तनकीद करता हूँ इसलिए कि हम बेहतर हो जाए। आज ज्यादा फोकस क्या है चर्चिस के अंदर? सुबह उठना, देग वगैरह, हलवा पूरी, नाश्ता, और ये हो रहा है, एक ट्रेंड बन चुका है हमारा। हमने इसको जैसे बाकी फंक्शन होते हैं ऐसे हम इस दिनों को भी कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस जहालत का हिस्सा ना बनिए। ये जहालत है। मजहब को या मसीहत मजहब से भी आगे है तो लोग फिजिकली खुशियों के त्योहारों में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। फिजिकली खुशियों, इकट्ठा होना, कुछ गप्पे शप्पे भी हो जाती हैं, फिर सारी बेटियां बेटे इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े राशि भी होते हैं। तो ये हो रहा है आजकल। तो जिन्हें पानी दे भी चाहिए पानी पीना, ऐसे ऐसे करके ये हो रहा है। यानी मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकली तौर पर इन दिनों को भी बनाया जा रहा है, इनकी रूहानियत को खत्म किया जा रहा है। याद रखिएगा ये बहुत गलत हो रहा है। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि और नस्लें बड़े खतरे में हैं। लेकिन हमें संभलना है, हमें संभलना है। अगर नहीं संभलेंगे तो ईमान का जहाज गर्क हो जाएगा। हमें इनकी अहमियत को समझना है और अपने अंदर उसके असर को कबूल करना है। हमें इन दिनों की अहमियत को समझकर क्या करना है? कबूल। और फिर पता क्यों है हलवा पूरी जिथे होने नाल पूरे मुखियां भी चले जाते हैं, फिर देखा कुटियां सीधियां हो जाती हैं क्योंकि शैतान को दिया जाते हैं। यीशु तो वहां होता नहीं, लेकिन इबलीस ही होता है। और जिन्होंने नाम मेरे खुदा भी मार छड़ता होता है, टेबल भी सड़ छड़ता होता है। वो मैं भी नहीं हिस्सा दिता आज, मेरे को तो तुहां उतार लिया है, मेरे घर दे भुखे गए ने, तू अपने नहीं वटांदा रहा, तू पानी उन्होंने नहीं देता रहा, कुड़ियां उन्होंने आगे रखियां ने। इस जहालत से चर्च को पाक करें, इस तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे फंक्शन, ऐसे माहौल से खुद को दूर रखें। फिजिकली दिल लुभाने के लिए अच्छे हैं, जी चाहता है चले जी, चलो फिर उठे चलिए जरा है, लेकिन इनसे दूर रहेगी जिस्मानी है और इनसे आपकी रूहानियत खतरे में है। सुनो गौर से, तालीम को समझिए। आज का दिन बहुत अहम त्योहार है, एक बहुत बड़ा काम किया गया है। वह सिर्फ यीशु ने ही जी उठा, बल्कि उसने इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतारा। और ना सिर्फ अपने ऊपर से, बल्कि जो ईमान में सो गए थे
اس سے پہلے ان کے اوپر سے بھی اتار دیا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ مقدسین کی قبریں کھل گئی اور اس کے جی اٹھنے کے بعد وہ قبروں سے باہر آئے. جب وہ اگلے بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. اس سے پہلے روح بیت کے اندر تھی، لیکن مسیح کے جی اٹھنے سے یاد رکھیے گا ایماندار آزاد ہو گئے، روحیں آزاد ہو گئی. آمین. اور ہمیں آزادی دلائی گئی ہے اور یہ آج کے دن ہوا. یاد رکھیے گا صرف ایتھے نہ دیکھو کہ کی بن دے ہے منجی تے پہ جو دے حال حال ہو جاتی ہے، پانی دا گھٹ پیا دیو تھوڑا پلا ہو جائے اور جان نکلن نہیں جے او بچا لو بنو. صرف یہاں نہ سوچے، یہاں تو ہے ہی ایسا، لیکن آگے بھی سوچو. یسوع جی اٹھا، ایک فرق ہے، اس کو پہچان لو آج. اور وہ فرق کیا ہے؟ قبرستان میں قبریں بہت ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کون سی قبر کے اندر ایماندار ہے اور کون سی قبر کے اندر بے ایمان ہے. لیکن یاد رکھو یسوع کو سب پتہ ہے. وہ اپنی بھیڑوں کو، وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور سنو، قبریں صرف یسوع کی مصلوبیت اور جیتنے سے انہی کی کھلتی ہے جو ایمان میں سوتے ہیں. جو بے ایمان ہیں ان کی قبریں نہیں کھلتی ہیں. جو بے ایمان ہیں وہ اختیار کے نیچے رہتے ہیں. جو بے ایمان ہیں وہ اندھیرے کے اندر رہتے ہیں. جو بے ایمان ہیں ان کی سزا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جو بے ایمان ہیں ان کے لیے روشنی ختم ہو جاتی ہے. جو بے ایمان ہیں ان کی سزا ختم نہیں ہوتی. ان کی جگہ جو ہے آگ اور گندک کی جھیل ہے جو کبھی نہیں بجھے گی. اس لیے ہے ہوش نال ذرا ریاض ہے. تواڈے نالوں پہلا بھی بڑے آکڑ آکڑ کے ٹردے رہے نے اور ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے. لیکن اگر ایمان میں رہو گے تو جیسے ان مقدسوں کی قبریں کھلی ہیں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، آپ کی قبریں بھی کھلے گی. آپ بھی زندہ ہو گیا. زور تھا. ہاللویا ہاللویا، زور گلوری. یہ جی اٹھنے کا پیغام تھا آپ کے لیے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آئے اپنے سروں کو جھکائیں. اس کلام کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. آؤ اپنے سروں کو جھکاؤ، دعا کرنا شروع کرو.